ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯਾਦ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਈਫਲ ਹੱਥ 'ਚ, ਮਤਲਬ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, 600 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਆਈਆਈਟੀ ਜੇਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ 600 ਦੇ 600 ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਉਸ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੈਕਟ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 9 ਤੇ 9:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, 2025 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਸਓਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਤਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀਜ਼, ਅੱਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ 40 ਕੁ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਨਆਨਸਰਡ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਵਾਂਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਟਾਫਟ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਵੰਤੀ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਵਨੀਤ ਜਾਂ ਅਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SOE ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 127 ਸਕੂਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ AD ਸਰ, ਸੰਜੇ ਸਰ ਐਂਡ एवरीवन। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ प्लस हिंदी मिक्स रखूँ। I'll just share my screen and start the presentation. I guess ये आप लोगों की सेकंड ट्रेनिंग हो रही है। फर्स्ट ट्रेनिंग जो थी वो मेरे कलीग जो साहिल थे उन्होंने ली थी, और आई एम श्योर कुछ टीचर्स के डाउट हैं और कुछ लोगों ने हमें फॉर्म में भी फिल करके डिटेल शेयर किए हैं। सो विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ इट ड्यूरिंग द सेशन। I'm just sharing my screen. मेरी स्क्रीन विजिबल है? Can anyone confirm? Okay. ठीक है, मीटिंग का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा है तो इस वजह से थोड़ा गूगल मीट में लैग आएगा। तो जहां भी आपको डाउट हो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, or maybe Navneet is there, she can moderate and tell me, because I'll not be able to look at the chat box simultaneously. तो ये पंजाब एकेडमी कोचिंग फॉर एक्सीलेंस, जैसे अभी AD सर ने या संजय सर ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य जो है कि हमें मैक्सिमम सिलेक्शन कराने हैं JEE एंड नीट में। और इसमें जैसे हम हेलो सॉरी सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। इट्स विजिबल शाहिद, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है, बट इट्स विजिबल। हाँ, एक मिनट शाहिद, सॉरी। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਊ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੂਗੀ। ਸਕਰੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਊ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਓਕੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਘੁਮਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। हाँ हाँ, मैं वही सारे ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। शाहिद, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस स्पेस प्रोग्राम का यही है कि हमें मैक्सिमम सिलेक्शन करानी है JEE एंड नीट में। और जिसमें मैं बता रहा था ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जैसे हम लोग नॉलेज पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, बट वी आर ओनली गोइंग टू असिस्ट गवर्नमेंट टीचर्स। और इसका जो मेन लेट्स से दैट फ्लैग बियरर्स जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, विच वी हैव वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ यू दैट विद योर सपोर्ट वी शुड बी एबल टू इंक्रीज द सिलेक्शन बोथ फॉर JEE एंड नीट। और अभी जैसे सर बता रहे थे कि हमारा एक टारगेट तो यही है कि पिछले साल जो सिलेक्शन हुए हैं उसके कंपैरिजन में इस साल की सिलेक्शंस बढ़नी चाहिए, बोथ IIT में या फिर वो MBBS या मेडिकल कोर्सेज की बात करें। तो हमने जो टेंटेटिव टारगेट रखा है कि पिछले साल जितनी भी सिलेक्शन हुई थी उससे 20% इंक्रीज होना चाहिए JEE में, JEE मेंस लेवल पे बात कर रहे हैं।
और अगर मेडिकल कोर्सेज की बात करें उसमें भी हम MBBS BDS को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हाई एस्पिरेशन होती है। एस्पिरेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम श्योर बहुत कम बच्चे होंगे जिनको अगर आप एम पूछे वो कहेंगे कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ या फिर मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ज्यादातर बच्चे जो है MBBS या BDS के लिए एस्पायर करते हैं। तो हमने यहाँ जो टारगेट रखा है, और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये हमने म्यूचुअल डिस्कशन से जो आपके ऑफिसर हैं उनसे या फिर हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट करके हमें लगा कि दिस इज समथिंग विच वी कैन अचीव our next 1 year. तो 5% increase in selection in MBBS and BDS. I'll go to the next slide. तो PEACE program की जो main offering है, which I'm sure all of you are familiar because you have been associated with this program, but I'll just maybe do a quick recap and then come to the main session जहाँ मैं आपके login related चीजों को address करूँगा। तो इस प्रोग्राम में आपको लेक्चर्स मिलते हैं JEE एंड नीट एक्सपर्ट्स के, जो हमने ऑलरेडी पोर्टल में रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, DPPs चीजें आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तो लेक्चर जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सेशंस हम प्लान करेंगे मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो इसका मेन पर्पस ये होगा कि आई मीन वी हैव, लाइक आई सेड, वी हैव वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, बट अभी तक हमारा अप्रोच टिपिकली गवर्नमेंट टीचर्स का अगर किसी भी स्टेट में बात करें तो प्राइमरी फोकस रहता है कि बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं सोचते हैं, या हम लोग ट्रेन नहीं है, या फिर जो हमारा बेसिक टारगेट होता है वो हमेशा होता है कि बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाने। बट क्योंकि अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ी जो टीचिंग अप्रोच है वो चेंज करनी होगी, बिकॉज देयर आर टू मेनी पार्टिसिपेंट एल्स शायद मैं इसको कुछ टीचर से बात करके भी और इंटरेक्टिव बना सकता था। बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर एक टीचर लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा है तो अगर वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे तो बच्चे के कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और इसके ऊपर बच्चा एक पैराग्राफ लिख पाए। बट वहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का नेक्स्ट स्टेज होगा कि बच्चे का टाइम मिनिमाइज करें। जैसे मान लो अगर मैं बच्चों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको अगर 10 मिनट दे दूंगा, 10 मिनट में बच्चा वो मुझे आंसर निकाल के शेयर कर देगा, बट क्या वो बच्चा उसी क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता है कि नहीं? तो वो आता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, और ये चीजें जो हैं अब हम चाह रहे हैं कि हमारे टीचर्स अपने टीचिंग पेडागोजी में इंक्लूड करें। दिस विल नॉट हैपन जस्ट ओवर वन वर्कशॉप और वन ट्रेनिंग, but over the period of association that we have our next year, we assume that this will get addressed. तो इसमें जो हम हैंड होल्डिंग है वो प्रोवाइड करेंगे दो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। टीचर्स को इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लो अभी हमने कोर्स प्लानर ड्राफ्ट करके हमने आप जितने भी टीचर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप हैं उनमें शेयर हुआ होगा। अब उसमें हमने कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स लिए हैं जो शायद हाई वेटेज हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें टीचर्स के भी डाउट होंगे और बच्चों के भी डाउट, और हम चाह रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट हो कि भाई इसको अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ाने की, या मुझे इसमें कितना समय देना है, तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द टीचर्स फर्स्ट, और उसके बाद वीकली बेसिस पे हम बच्चों के भी डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। और ये जो बच्चों के डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे ये ऑनलाइन होंगे, और इसमें हमें डिस्करेज नहीं होना है। जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम अगर नया शुरू होता है तो लोगों को समझने में, पर्टिकुलर जैसे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर हम बच्चों को कहें कि आप अपने गूगल फॉर्म में आप डाउट्स जो है हमें शेयर कर दें, तो शायद शुरू में उनको ट्रेन करने में, समझाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ हमारे पास बहुत सिस्टमैटिकली डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे। और वो सिस्टमैटिकली डाउट में आई विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड कि बच्चा अपना एक चैप्टर सेलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन में, टॉपिक सेलेक्ट करेगा और हमें डाउट भेज देगा। अगर मान लो एक टीचर के पास 50 डाउट्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो टीचर को रियलाइज हो जाएगा कि ये टॉपिक में बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, तो इसका रिवीजन दोबारा करा देते हैं। और एक टॉपिक होगा जिसमें सिर्फ 2 या 3 बच्चों का ही डाउट आए, तो दैट मीन्स ये सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे प्रॉब्लम है। हो सकता है इस बच्चे ने प्रॉपर्ली होमवर्क नहीं किया होगा या प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो मुझे पूरी क्लास या पूरे स्टूडेंट को रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। तो इन ए सिस्टमैटिक वे वी आर गोइंग टू एड्रेस द डाउट्स बोथ फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। अब वीकली टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, हमने ऑलरेडी एक टेस्टिंग प्लानर जो है ड्राफ्ट करके सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया था, और जैसे अभी सर बता रहे थे कि 20th को ये क्लैश कर रहा है एक दूसरे एग्जाम्स के साथ, सो वी आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। हम जितने भी टीचर्स के सजेशन आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही अपना प्लानर जो है फ्रीज करेंगे। सो वी आर लाइकली टू पोस्टपोन इट टू नेक्स्ट वीक और व्हेनेवर इट्स फिजिबल।
और ये वीकली जो टेस्ट होंगे, इसमें जैसे हमने बाकी स्टेट में भी एक्सपीरियंस किया है कि बच्चा जो फर्स्ट टेस्ट देता है तो हमेशा उसका स्कोर कम आने की वजह से वो डिस्करेज हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो अचीवेबल ही नहीं है, मेरा तो स्कोर मान लो 30% आया है, 40% आया है। बट आई एम टेलिंग विद माई ओन एक्सपीरियंस इन डिफरेंट स्टेट्स कि हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका स्कोर शुरू में शायद 20 या 30% आया, एंड फाइनली दे हैव बीन एबल टू मेक इट टू द NITs, RIITs. I mean the basic thing here is like lot of practice is required. कि ये सिर्फ क्लास में पढ़ के समझ के अगर आप नेक्स्ट क्लास में अटेंड कर रहे हो तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और ये जो एग्जाम है, आप ऐसा इमेजिन करें, एक दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट शाहिद है जो सिर्फ क्लास में आता है और टेस्ट नहीं देता, एक दूसरा स्टूडेंट है दिलजीत। तो दिलजीत जो है हर हफ्ते टेस्ट दे रहा है और उसने हर महीने में 4 टेस्ट दिए हैं और साल में उसने कम से कम 50 टेस्ट दे दिए। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि दिलजीत ने 50 टेस्ट जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिए। अगर वो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं जो क्वेश्चंस उसको वीकली टेस्ट में पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट दिलजीत इज गोइंग टू क्वालिफाई। इसमें एक बेसिक एग्जांपल हम बच्चों को ये भी देते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट बना हुआ है ऑलमोस्ट हर टॉपिक के हमारे पास 50 से 100 क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम पूरे सिलेबस में ऐसे बात करें तो हमारे पास जो कंटेंट बना हुआ है वो या जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बने हुए हैं वो पूरे सिलेबस के। अब एग्जामिनर अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, ये 50 में से किसी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएगा। इट्स वेरी रेयर कि इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर बच्चा वीकली बेसिस पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम दे रहा है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ऐसे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप टॉपर्स की भी इंटरव्यूज देखेंगे तो वो हमेशा बोलते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम से 1 महीना पहले मैं उठ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। जो पूरे साल बच्चा टेस्ट सीरीज करता है वो एक सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन जो है वो बच्चे की होती है। और इसमें हम ऐसा भी करते हैं कि हम टेस्ट 1 में सिर्फ 1 चैप्टर देते हैं, टेस्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 देते हैं, टेस्ट नंबर जो 3 या 4 होता है उसमें क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है। कई बार होता है ना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, कि भाई बच्चा आगे तो कवर करते जा रहा है बट पिछला भूल गया। जैसे हम ज्यादातर 12th क्लास के बच्चों से जब बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर हमारा तो 11th का बहुत वीक है, हमें तो कुछ पता ही नहीं या हम भूल चुके हैं। तो वो है कि बच्चे का एक क्यूमुलेटिव टेस्ट एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम करते हैं कि भाई महीने में अगर 4 टेस्ट हैं तो चौथा टेस्ट होगा, या फिर एवरी 2 मंथ्स में एक टेस्ट ऐसा होगा जो क्यूमुलेटिव सिलेबस टिल डेट हम बच्चे से पूछेंगे, तो उससे बच्चे का रिवीजन भी होता है। और बच्चे की हम हैवी काउंसलिंग करते हैं, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जब बच्चों से बात करें तो उनको सबसे पहले यही चीज के लिए मोटिवेट करना है कि भाई हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है। ये ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने बाद की चीज को लेके टारगेट लेके चल रहे हैं। सो वी आर प्लानिंग कि आप अगले 1 साल में 2 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करें। उसमें अभी अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो योर टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज स्टडी मटेरियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये स्टडी मटेरियल हमने मैक्सिमम जो मटेरियल है वो आपके पेस पोर्टल पे डाल दिया है और इसमें कुछ अगर पेस पोर्टल की बात करें, आई एम श्योर यहाँ ज्यादातर टीचर्स जो हैं उन्होंने पेस पोर्टल एक्सेस किया होगा और आई एम श्योर दे आर फैमिलियर विद द प्लेटफॉर्म, बट फिर भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं शायद उन्होंने इसको अभी तक यूज नहीं किया होगा, या कुछ टीचर्स ऐसा भी होता है सिस्टम में ट्रांसफर होके एक एसओई से नॉन एसओई स्कूल चले जाते हैं। तो उन टीचर्स के लिए एक रिकैप है हमारा पेस पोर्टल कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें हमें इंफॉर्मेशन जो है इसमें मिलेगी। ये पेस पोर्टल के स्क्रीनशॉट लिए हैं और यहाँ पर मैंने पेस पोर्टल का हाइपर लिंक भी डाला हुआ है। अगर ये पेस पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पोर्टल ऐसा दिखता है कि यहाँ पर आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जेई मेन और नीट यूजी, नीट और जेई के लिए 2 यहाँ टैब्स मिलेंगे और बाकी यहाँ पर अनाउंसमेंट है ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर मान लो मैं यहाँ पर जेई मेंस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सिलेबस, पास्ट पेपर, एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ और इम्पोर्टेंट डेट्स। ये इम्पोर्टेंट डेट्स अभी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, बट जो ही बच्चे के जो फाइनल एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस होती हैं तो यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। दूसरा ये जो अभी हमने टेस्ट सीरीज ग्रुप में आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया होगा, इवेंचुअली हम वो जो डेट्स हैं टेस्ट की वो भी यहाँ डाल देते हैं। अभी हमारा असम्पशन ये था कि ज्यादातर बच्चे पर्टिकुलरली शायद पोर्टल पे आके एक्सेस नहीं कर रहे होंगे मटेरियल, तो इसलिए हम जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन रख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रख रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे या जितने भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं वो पोर्टल का यूज करें
और फिर हमें फीडबैक टाइमली देते रहें कि पोर्टल में आप क्या इनपुट्स इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट रखे हैं। होम पेज पे आपको एग्जाम प्रिपरेशन एक सेक्शन मिलेगा जिसमें जेई मेन और नीट। अब मान लो एक मैम है जो बायो पढ़ाती हैं, तो उनको नीट पे क्लिक करना है और उनको वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का मटेरियल मिलेगा। और एक दूसरे टीचर है, मान लो वो फिजिक्स पढ़ाते हैं जेई के लिए, तो उनको जेई मेन पे क्लिक करना है और वहां पर उनको जेई स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। नो, अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन में, जैसे मैंने अभी आपको पोर्टल का लिंक ओपन करके दिखाया था, एग्जाम प्रिपरेशन में आपको जेई मेन और नीट का 2 ऑप्शन मिलेगा। इन पे अगर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इज आपको जेई मेन के अंडर लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सिलेबस, पास्ट पेपर, एग्जाम पैटर्न, ये सब चीजें आपको मिलेंगे जैसे मैंने आपको पोर्टल में ऑलरेडी दिखाया। ठीक है, अगर आप वीडियोस की बात करें, वीडियो लेक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेड वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा कि अगर मैं क्लास 11 में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अब यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टैब में मेन जेई मेन पे क्लिक किया था। अगर मैं वहाँ नीट क्लिक करता तो मुझे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो दिखता। ठीक है, और आई एम श्योर आप लोग जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंटेंट एक्सेस करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें कोई किसी का डाउट हो बिफोर आई प्रोसीड ऑन द टेस्ट थिंग? ओके, सो प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कैसे देना है। ठीक, जो भी ये लिंक ओपन करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि गूगल क्रोम से हम ये लिंक ओपन करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो लिंक हैं वो सारे जितने भी ब्राउजर हैं उसमें ओपन हो, बट कई बार हमने देखा है टीचर तो आई एम श्योर दे आर स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट, बट बच्चों से ये अक्सर चैलेंज आता है, वो कहते हैं कि कंटेंट एक्सेस नहीं हो रहा या लिंक ओपन नहीं हो रहा। तो उस केस में हम बच्चों को एक ही चीज एडवाइस करते हैं कि हमेशा जो लिंक है वो गूगल क्रोम से ओपन करें। कई बार पर्टिकुलरली बच्चों के पास जैसे मान लो चाइनीज मोबाइल रहता है तो उनका कोई डिफॉल्ट ब्राउजर अदर देन क्रोम रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, बच्चों को लिंक कॉपी करके क्रोम ब्राउजर ओपन करके पेस्ट करना है। तो ओपन द लिंक विद गूगल क्रोम एंड देन क्लिक ऑन द मॉक टेस्ट टू एक्सेस द चैप्टर टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट लिंक दिख जाते हैं। आई मीन द मेन आइडिया हियर इज कि हम चाह रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, कि बच्चा सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ले। ये चीजें हैं बच्चों की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। इसके ओवर एंड अबव हम जो वीकली टेस्ट भी लेंगे, जैसे मान लो यहाँ टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, सामने उसका लिंक दिया हुआ है, तो बच्चा को सिंपल सामने लिंक पे क्लिक करना है और एक सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अब ये क्लिक करने के बाद जो टेस्ट ओपन होता है, जो ही बच्चा उसको सबमिट करता है तो द स्टूडेंट और हूसोएवर इज टेकिंग द टेस्ट, उनको अपनी स्क्रीन पे रिजल्ट दिख जाएगा। तो आई मीन द बैकएंड में जो हमारा क्विजिंग इंजन है, द वे इट वर्क्स इज एज सून एज यू सबमिट योर टेस्ट यू गेट योर स्कोर कार्ड ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, तो ये यहाँ टॉपिक वाइज हमारे दिए हुए जो भी टॉपिक्स हैं, एंड सामने अगेंस्ट दीज टॉपिक्स यू फाइंड द टेस्ट लिंक्स। सो विच एवर सब्जेक्ट यू आर चूजिंग, जैसे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक चूज करके आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमेशा बच्चों को एडवाइस करना है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करें। कि जैसे एक प्लानर हमने अभी तो टेंटेटिवली, हमारे पास टाइम कम था कि वी हैड टू कंक्लूड एवरीथिंग बाय फरवरी एंड, तो हमारे पास रफली 40 डेज बनते थे, तो 40 डेज में वी कुड डू मैक्सिमम 4 टेस्ट। बट नेक्स्ट ईयर का जो आपका प्लानर होगा वो वी आर गोइंग टू शेयर इट बिफोर योर सेशन स्टार्ट। मे बी मार्च में हम आपके साथ प्लानर शेयर कर देंगे। और प्लानर में जैसे जनरली हम रेकमेंड करते हैं जो हाई वेटेज या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं उन पे प्रायोरिटाइज या फोकस किया जाए। तो बच्चे को शेयर कर सकते हैं कि भाई सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करें, गो 1 by 1 अगेंस्ट दीज चैप्टर्स एंड डू एज मच प्रैक्टिस एज। बेटा बाहर ही चुप करके बैठो, पेपर तो चलना जिना चलता पे। ठीक है, नो इफ आई टॉक अबाउट कि प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कैसे देना है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिसीव्ड सम डेमो लिंक्स। जैसे ओरिजिनली हमारा प्लान था कि सैटरडे हम बच्चों को ऑफलाइन में एक टेस्ट ले लेते। उस टेस्ट के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई बच्चों का प्लेटफॉर्म, आई मीन फॉर मी इट्स इजियर टू एक्सप्लेन इट टू द टीचर्स बिकॉज उनके लिए बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, हाँ ये लिंक है, ये क्लिक करना है, क्रोम से ओपन करना है। बट बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस भी कर लें। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेरा स्टूडेंट आईडी क्या है, बहुत सारे बच्चों को आई एम श्योर अपना स्टूडेंट आईडी भी याद नहीं होगा। अब बैकएंड में मैकेनिज्म ये होता है कि आपका सारा डिटेल जो है मैप्ड है आपकी स्टूडेंट आईडी के साथ।
अगर अपना स्टूडेंट आईडी बच्चे को बतानी है तो उसको टेस्ट देने में डिफिकल्टी होगी। तो सबसे पहले हम बच्चे को उनका स्टूडेंट आईडी जो है, जैसे रोल नंबर होता है, तो हमने हमारा पहला काम यही है कि बच्चों का उनको स्टूडेंट आईडीज कंफर्म कर दें कि ये स्टूडेंट आईडीज हैं जो यूज करके आप लोग जो है वीकली टेस्ट दोगे। यहाँ जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने यहाँ शेयर किया है, लेट्स ओपन वन ऑफ दीज लिंक्स। तो आपका जो भी वीकली टेस्ट होगा वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पर वो स्टूडेंट आईडी मांग रहा है। नो, लेट्स गो टू योर MIS और यहाँ से एक स्टूडेंट आईडी हम कॉपी कर लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द डेमो पर्पस। मान लो यहाँ हरप्रीत कौर का है 58656। अब यहाँ देखो ये 8 डिजिट स्टूडेंट आईडी मांग रहा है, बट इस बच्चे का जो स्टूडेंट आईडी है वो 7 डिजिट है। सो आई हैव टू प्रीफिक्स इट विद 0. I can, okay, ID is incorrect. I probably made a mistake here. Okay, let's try another ID. ओके, तो जो ही बच्चा अपना स्टूडेंट आईडी एंटर करता है तो उनकी स्क्रीन पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखेगी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये PCM का प्रैक्टिस टेस्ट है। यहाँ 60 क्वेश्चंस हैं। ये क्लास 11 के लिए है टेस्ट। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का टेस्ट हो रहा है। क्या पर्पज है? असेसमेंट के लिए। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि टेस्ट का नेम क्या है, PCM प्रैक्टिस टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? पार्ट टेस्ट है। अब यहाँ हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ले रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, कुछ क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं। एक होता है चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में बच्चे को हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर आएगा, कि फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक और बायो या मैथ जो भी स्ट्रीम है एक एक चैप्टर आएगा साथ। इसको बोलते हैं चैप्टर टेस्ट। पार्ट टेस्ट में हमारे जो चैप्टर होते हैं पर सब्जेक्ट वो 2 या 3 चैप्टर के टेस्ट होते हैं, उसको पार्ट टेस्ट बोलते हैं। और मेजर टेस्ट में 5 चैप्टर पर सब्जेक्ट आते हैं। और फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होता है जिसमें पूरा सिलेबस आएगा आपको। तो यहाँ पर ये पार्ट टेस्ट है। पार्ट टेस्ट का मतलब यहाँ पर कम से कम 2 से 3 चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है तो दिस इज जस्ट फॉर द प्लेटफॉर्म ओरिएंटेशन, कि बच्चा इसमें प्लेटफॉर्म पे आके एक्सपीरियंस कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले। उसके बाद ड्यूरेशन है 120 मिनट का, 2 घंटे का ये टेस्ट है। 240 नंबर टोटल होंगे और 60 क्वेश्चंस का पेपर है। 60, हर क्वेश्चन 4 नंबर का। अब यहाँ पर नीचे एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपका आंसर, आप ये रिपोर्ट है, जब आप टेस्ट एंड कर देते हैं तो आपको एक रिपोर्ट दिखती है। ग्रीन का मतलब आपने आंसर कर दिया है, और ये जो लाइट रेड आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि मैंने ये टेस्ट पेपर क्वेश्चन जरूर देखा है बट मैंने इसको स्किप कर दिया है। और ये क्वेश्चन है जो आपको लाइट ग्रे दिखेगा, यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद बच्चा जो है लेट्स स्टार्ट जो नीचे दिख रहा है इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, नो, अब मान लो यहाँ पे बच्चे को क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मान लो हम रेंडमली यहाँ पर आर्ट्स क्लिक करके, अब यहाँ पर नीचे आपको 3 चीजें दिख रही हैं, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर और यहाँ पर स्किप। ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिंपल इस एरो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको एरो दिख रहा है ना, ये हमने जो बनाया है ये NTA पैटर्न पे बनाया है। जैसे मान लो आजकल NTA एग्जाम लेती है जेई का या नीट का, तो हम चाह रहे थे कि भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर हो जाए। अब वहां पर भी एक यही चीज आती है कि बच्चा क्या करता है, आंसर मार्क कर देता है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता है। बट जब तक मैं एक्सट्रीम राइट में जो सेव एंड नेक्स्ट दिया है इसको क्लिक नहीं करूंगा तो मेरा जो आंसर है सेव नहीं होगा, वो दैट मीन स्किप दिखेगा। टिपिकली हमने बहुत बार देखा है कि बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बट इसमें तो दिख रहा है कि सारे स्किप हो गए। वो प्राइमरी रीजन की बच्चा आंसर तो मार्क कर रहा है बट यहाँ सेव एंड नेक्स्ट क्लिक नहीं कर रहा। तो जब तक यहाँ सेव एंड नेक्स्ट एक्सट्रीम राइट में जो दिया है वो क्लिक नहीं करेगा बच्चा, तो आपका आंसर सेव नहीं होगा। तो बच्चों को हमेशा ये ब्रीफ कर देना है कि आप जब भी आंसर कोई मार्क करो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप मान लो आंसर क्लिक कर दिया और यहाँ ये छोटे से एरो पे क्लिक कर दिया तो आप स्किप कर दिया, बेसिकली आपने क्वेश्चन को सेव नहीं किया है ना। मान लो यहाँ पर मैंने आंसर ये कर दिया, अब आई कैन क्लियर दिस आंसर। ठीक है, सो दिस इज वन फंडामेंटल मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू। हमारे पास ये भी सजेशन आया था कि डिफॉल्ट सेव एंड नेक्स्ट होना चाहिए, स्किप का ऑप्शन ही ना हो। बट देन आवर आइडिया वाज कि बच्चे को रियल टाइम NTA प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर मिले। अभी इज फाइन, अगर बच्चा अभी गलती भी करेगा वो वापस टीचर को पूछेगा कि सर मैंने या मैम
मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसमें स्किप क्यों दिखा रहा है? तो आप बच्चे को सिंपली कहोगे कि आपने सेव इन नेक्स्ट ही नहीं किया। तो इट्स फाइन, बच्चा अगर अभी एक बार मिस्टेक करता है, 2 बार मिस्टेक करता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेन हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है स्किप में और सेव इन नेक्स्ट में। इसलिए हमने प्लेटफॉर्म पे कोई चेंज नहीं की, ठीक है। तो मान लो मैं रेंडमली यहाँ आंसर अब सेव कर रहा हूँ, एंड देन अब यहाँ टॉप में आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन में एक टाइमर चल रहा है। तो मान लो ये 2 घंटे का टाइमर था, अभी हमें लगभग 3 मिनट होने को हैं टेस्ट देते हुए। अब यहाँ पर एंड टेस्ट है, अगर मेरा मान लो मैं अभी यहाँ फिनिश करूंगा एंड टेस्ट ताकि आपको रिपोर्ट दिखा पाऊँ, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द एंड टेस्ट। यहाँ लिख रहा है यू हैव आंसर्ड 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, क्लिक ऑन द क्वेश्चन पैलेट टू रिव्यू आंसर। यहाँ पैलेट दिख रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट में, इस पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि भाई मैंने क्वेश्चन कौन से स्किप किए हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट आपको दिख रहा है कि मैंने स्किप किया है, सेकंड मैंने आंसर कर दिया है, थर्ड मैंने स्किप कर दिया है, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है मैंने आंसर किया, और 6 मैंने स्किप कर दिया। बाकी जो क्वेश्चन आपको लाइट ग्रे दिख रहे हैं ये मैंने अभी विजिट ही नहीं किए। तो बच्चा टेस्ट एंड करने से पहले इसको भी रिव्यू कर सकता है। आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम हियर क्योंकि आई एम श्योर आपको बच्चों से ज्यादा क्वेरीज शायद प्लेटफॉर्म या टेस्ट के रिलेटेड आएंगी, ठीक है। तो बच्चा एक अपने लेवल पे एक परफॉर्मेंस अपना रिव्यू भी कर सकता है। ये जो 3 रोज आपको एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट में दिख रही है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मैंने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं। तो अब मैं यहाँ पर एंड टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो। अब मैं जो ही मैंने टेस्ट खत्म किया है तो यहाँ पर मेरा स्कोर दिख गया कि मेरा -3 है स्कोर। मेरे करेक्ट आंसर थे 0, जो मैंने 3 आंसर किए वो 3 के 3 गलत थे, और 57 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे नीचे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, फिजिक्स के क्योंकि पेपर फिजिक्स से स्टार्ट होता है, फिर केमिस्ट्री सेक्शन आया, मैंने पहले ही फिजिक्स का अटेम्प्ट किया तो मेरा -3 स्कोर है, क्योंकि एवरी नेगेटिव इट हैज नेगेटिव मार्किंग, और हर क्वेश्चन गलत होने पे -1 मार्क जो है डिडक्ट होता है। टोटल क्वेश्चंस 20 थे, मेरा मार्क्स स्कोर -3 है, अटेम्प्ट रेट मेरा 15% था, और एक्यूरेसी 0%। ये एक्यूरेसी जो है वो ये लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है, पर्टिकुलरली जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरा एक्यूरेसी क्या है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये हम इसलिए बच्चे को देते हैं क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मान लो 300 नंबर का टेस्ट होता है, 300 में से अगर बच्चे का 130 140 आ जाएगा तो बच्चे को एनआईटी मिल जाएगा बहुत ही आराम से। तो आप देखिए कि स्कोर कितना चाहिए, ऑलमोस्ट बच्चे का अगर 40% स्कोर भी आएगा, कि 300 में से बच्चा 130 140 अगर ले ले तो आराम से वो एनआईटी में सिलेक्शन अपना सीट जो है सिक्योर कर सकता है। और इसमें फिर कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ होता है कि अगर मान लो एक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, वो 300 में से अगर 90 नंबर या 100 नंबर भी लेगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो बच्चा जो है क्वालिफाई करेगा एंड माइट गेट ए वेरी गुड कॉलेज। तो जब हम बच्चे की काउंसलिंग करें टेस्ट रिलेटेड, तो आई एम श्योर दीज आर नॉट द थिंग्स दैट वी कैन ओपनली डिस्कस इन द क्लास कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बट आई एम श्योर आप जब बच्चों से 1-on-1 बात करोगे तो उन बच्चों की आप कैटेगरी पूछ सकते हो और उनसे बात कर सकते हो, ठीक है बच्चे आपका तो रिजर्व कैटेगरी SC कैटेगरी है, आपके 300 में से अगर 100 नंबर भी आ रहे हैं या 90 नंबर भी आ रहे हैं तो दिस इज वेरी डिसेंट स्कोर। और जो हम एक्चुअली इस टेस्ट के बाद एक बच्चे को इंडिविजुअल रिपोर्ट भी शेयर करते हैं, उसका लिंक मेरे पास हैंडी नहीं है, बट उसमें हम बच्चे को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता सकते हैं कि आपका कितना डिफरेंस चल रहा है। टिपिकली जैसे नॉर्मल साइकी ये होता है कि भाई 300 नंबर का टेस्ट है तो एनआईटी में जाने के लिए कहीं 250 या 280 नंबर तो नहीं चाहिए। जैसे मान लो नीट का कट ऑफ है कि नीट में 720 मार्क्स में से बच्चे को 650 लेना है, तभी उसको एमबीबीएस का एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। दैट्स नॉट द केस विद जेई। यहाँ पर आई एम श्योर इवेंचुअली जब आपका हम टीचर ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, वहाँ जेई के टीचर्स के साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि भाई अगर बच्चा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैथ में अगर 4 या 5 क्वेश्चन भी करके आ रहा है तो बच्चे का जेई क्लियर हो जाएगा, उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट वाला मिल जाएगा। So that we can probably discuss later when we do this offline teacher training for JEE teachers. Okay, but this is how the report looks like. ये helpful है क्योंकि बच्चा को instantly on the spot उसको अपना टेस्ट का स्कोर मिल रहा है, उसका करेक्ट इनकरेक्ट स्किप का पार्ट मिल रहा है। एक बच्चे के अंदर टेम्पटेशन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो हम चाह रहे हैं कि टीचर्स जो है बच्चों को अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि यहाँ एक्टिव मार्किंग में अक्सर उनके मार्क्स जो हैं वो लॉस होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर आई मीन दे मेक द क्वेश्चन इन सच ए वे दैट दे आर गोइंग टू कंफ्यूज द चाइल्ड। बच्चे को लगता है नहीं ये तो प्रोबेबल आंसर लग सकता है, दैट्स नॉट द राइट आंसर। सो इफ दे डोंट नो द करेक्ट आंसर दे शुड रादर स्किप द आंसर रादर देन अटेम्प्टिंग एंड गोइंग फॉर maybe assuming that
this could be the right answer because they are going to lose marks. तो ये चीजें बच्चों को समझानी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए अपने मार्क्स जो है लॉस नहीं करने, whatever you know do that much only. और इनिशियली जो हम अभी टेस्ट आपके स्टूडेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं वो इजी लेवल के टेस्ट प्लान कर रहे हैं, तो जैसे हमें कितना भी हम बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं, एंड ऑफ डे वो बच्चे हैं, उनका एज ग्रुप ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं डिस्करेज या डिमोटिवेट होंगे, तो हम इनिशियली जो टेस्ट लेंगे वो शायद थोड़े आसान लेवल के टेस्ट लेंगे, बट उसमें भी अगर बच्चों का स्कोर कम आता है तो दे शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड। वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे टीचर्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज अबाउट द वीकली टेस्ट दैट दे आर गोइंग टू गेट एंड दिस हाउ द एक्सपीरियंस वुड लुक लाइक। ठीक है, अब यहीं पर मैंने जो अभी आपको एक्चुअल लिंक ओपन करके दिखाया उसी के स्क्रीनशॉट यहाँ कैप्चर हैं कि बच्चे को अपना स्टूडेंट आईडी एंटर करना है। इसमें एक मिस्टेक जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला ये कंसर्न है कि बच्चे को अपना स्टूडेंट आईडी याद नहीं है, तो वो इंश्योर करना है कि बच्चे को स्टूडेंट आईडी मिल जाए। दूसरा ये किसी बच्चे का 7 डिजिट का स्टूडेंट आईडी होगा तो उसको प्रीफिक्स करना है 0 से। सो यहाँ पर जब बच्चे ने स्टूडेंट आईडी अपना एंटर कर दिया तो उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म दिखेगा कुछ ऐसा, ये जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर वही मैंने प्रेजेंटेशन में उसके स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन की कॉपी हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, सो दैट यू कैन प्रॉब्ली डू ए रिकैप एंड गो थ्रू इट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन द डेमो ऑन द टेस्ट लिंक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता रहा था कि आंसर मार्क करना है, यहाँ टाइम स्टैम्प ऊपर चल रहा है कि कितना ड्यूरेशन हो गया आपको यहाँ टेस्ट देते हुए, या एंड टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, और ये बच्चे का स्कोर उसको दिख गया। ठीक है, नो वी आर कमिंग टू द पेस कंटेंट पोर्टल, और ये वो पोर्टल है जहां आप सारे टीचर्स का लॉगिन आईडी क्रिएटेड है। अगर किसी टीचर का लॉगिन आईडी क्रिएटेड नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट नवनीत टू शेयर ए गूगल फॉर्म इन द ग्रुप wherein they can drop their query कि उनको उनका टीचर का लॉगिन आईडी जो है वो let's say they've forgotten it, they have not been able to access it, or whatever issues or challenges that you are facing, तो वो अगर आप क्वेरी नवनीत मैम को शेयर कर दोगे we can help resolve it। तो यहाँ आई एम श्योर ऑल ऑफ यू माइट हैव एक्सेस दिस पोर्टल ऑलरेडी। यहाँ पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिंक, एक ऑथ लिंक है, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेरी जो टीचर का आया था हमारे पास कि उनको बार बार लॉग इन करना पड़ता है, कि हर वीडियो देखने के लिए उनको दोबारा अपना क्रीडेंशियल डालना पड़ता है। नो, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट, बट इसका मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये लॉग इन बार बार क्यों रखा है। इसका पर्पज ये था कि आई एम श्योर एक टीचर एक दिन में 5 लेक्चर वॉच नहीं करेंगे। मान लो आज एक लेक्चर या 2 लेक्चर रिव्यू करेंगे और उसके बाद कल पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रिव्यू करेंगे, तो एवरी टाइम जब टीचर इसमें लॉग इन करते हैं तो बैक एंड पे हमारे पास एक उसका लेट्स से दैट वी गेट एन अलर्ट कि इस टीचर ने इस डिस्ट्रिक्ट से, इस स्कूल से लॉग इन किया, तो वहां से हम टीचर का रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना यूजेज हो रहा है। दैट आई विल कम टू द डैशबोर्ड एंड एक्सप्लेन कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड कैसे दिख रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ टीचर बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां टीचर्स जो हैं वो शायद इतने अच्छे से अभी तक यूज नहीं कर पा रहे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड दे विल आल्सो यूज इट इफेक्टिवली। ओके, सो आपका जो प्लेटफॉर्म, आई विल जस्ट गिव यू डेमो हियर, मे बी आई कैन एक्चुअली ओपन ए लिंक। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ फिजिक्स के टीचर्स का शीट ओपन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्रीडेंशियल है, मान लो यहाँ पर टीचर आईडी ये है, स्कूल का नाम ये है, कपूरथला है, और यूडाइस कोड ये। अब मान लो मैं फिजिक्स के सेशन पे लॉग इन पे आता हूँ, यहाँ पर ऑथ लिंक दिया हुआ है, मुझे इस पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर टीचर का आईडी एंटर करना है। यहाँ पर मैं टीचर आईडी अगर एंटर करूंगा, सबमिट करूंगा, नो आई कैन एक्चुअली एक्सेस द कंटेंट। अब जो ही अपना टीचर अपने यहाँ आईडी एंटर करते हैं तो उनका बैकएंड में डाटा रिकॉर्ड हो जाता है कि किस टीचर ने कितनी बार अटेम्प्ट किया है, कौन से चैप्टर्स को एक्सेस किया है, एंड दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड द थिंग्स एट द बैकएंड। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ चैप्टर नेम है, टॉपिक नेम है, उसके सामने ऑथ लिंक है। ज्यादातर टीचर्स का, अभी हमने गूगल फॉर्म भी फ्लोट किया था कि टीचर्स का फीडबैक लें, उनको क्या चैलेंज आ रहा है। मैक्सिमम टीचर, आई वुड से 50% ऑफ देम हैव सेड दैट कि उनको लॉगिन पे इशू है, कि मालूम मैं ये चैप्टर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ एक बार लॉगिन करना है, उसके बाद मैं अगर नया चैप्टर देख रहा हूँ तो मुझे बार बार लॉगिन करना है। बट ये आई गेस एक चैलेंज तो इसलिए आता होगा कि मुझे अगर आईडी अभी तक याद नहीं है तो मुझे बार बार अपना शीट में जाके देखना पड़ेगा। बट एक बार मुझे अगर सिंपल ही होता कि मुझे मोबाइल नंबर डालना होता, so that would not have been a problem because I precisely remember my mobile number.
तो सिंपली मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और सबमिट कर देता, बट स्टिल योर सजेशन इज वेल टेकन, वी आर वर्किंग अराउंड इट थ्रू सम मैकेनिज्म। डिफॉल्ट आपकी डिवाइस से आपका लॉगिन जो है आईडी कैप्चर कर ले, बट लाइक आई सेड इट मे नॉट गेट रिजॉल्व इमीडिएटली, बट वी आर थिंकिंग कि इवेंचुअली क्योंकि अभी तो 1 महीने का ही समय है, उसके बाद आपके बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बट व्हेनेवर यू रिज्यूम द सेशन वी हैव ए सोल्यूशन फॉर दिस, वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस फीडबैक। ठीक है, सो हाँ, सो दिस इट लुक्स लाइक कि आपको लिंक पे क्लिक करना है, आपके पास सबके पास पेज पोर्टल का कंटेंट का लिंक है, ये शीट्स भी क्रिएटेड हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ऑल द टीचर्स नो देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। जैसे मैं आपको यहाँ फिजिक्स के क्रेडेंशियल दिखा रहा था कि यहाँ पर क्रेडेंशियल में सारे टीचर्स के आईडीज जो हैं वो मेंशन हैं, उनके स्कूल नेम मेंशन है, डिस्ट्रिक्ट और यूटाइज के कोड, और यहीं पर लॉगिन के लिए ऑथ लिंक मेंशन है, ऑथ लिंक में सिंपली क्लिक करके वो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ और उसी अब जो मैंने आपको वहां डेमो दिया उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ कैप्चर्ड है कि भाई टीचर को अपना जो आईडी है वो एंटर करना है। आईडी एंटर करते ही यहाँ पर आपका वीडियो ओपन हो जाता है और देन यू कैन वॉच द वीडियो। और जैसे ये जो वीडियोस हैं, ये जैसे मैं कह रहा हूँ, दिस नॉट लाइक समथिंग दैट विल रिप्लेस द टीचर। We have very high confidence on all the teachers. I mean, all of you are expert in your respective subjects, respective domains. But ये reference के लिए आप ये चैप्टर, ये वीडियोस यहाँ से वॉच करने के बाद आप अपना एक अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपको पेज पोर्टल पे हमने अब नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, विच यू कैन एक्सेस, यू कैन फाइंड इट, यू मे फाइंड इट हेल्पफुल। कोई टीचर ऐसा भी हो सकता है कि जो सजेस्ट करेगा कि नहीं ये नोट्स उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं, आई एम मेकिंग माई ऑन नोट्स। तो ऐसे टीचर्स जो सजेस्ट करेंगे वी विल बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट एंड इंक्लूड दोज नोट्स ऑन द वेब पेज आल्सो। सो अगर आप इसमें सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, आपके पास सजेशन है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव दो सजेशन। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि टीचर जो ही लॉगिन करता है वो वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आप वीडियोस में कुछ फीडबैक आया था टीचर से, कुछ टीचर्स ने कहा है कि वीडियो बहुत ही छोटा है और कुछ ने कहा कि नहीं वीडियो बहुत लेंदी है। अब जो टीचर बोल रहे हैं कि वीडियो छोटा है, तो मेन पर्पज इज हम चाह रहे हैं कि टीचर के लिए these are not meant for students। आप क्विक रिकैप करने के बाद अपना एक अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर करें, because we are not going to replace teachers in the class, you are still going to be there, the main flag bearer। तो आप ये मटेरियल रेफर करके अपना लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि स्टिल यू वांट बेटर लेक्चर, लेंदी लेक्चर, तो हमारे पास जो लेंदी लेक्चर्स हैं वो भी हैं, जो हर टॉपिक के रफली 1 hour and 15 minutes तक के एक्सटेंड होते हैं। सो वी कैन गिव एक्सेस टू दोज वीडियोस, बट नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज वी नो जब हम 1 घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे तो 400 में से 100 टीचर ही इतनी एपिटाइट या टाइम डेडिकेट पाएंगे कि वो 1 घंटे का वीडियो वॉच कर पाए। So that's why we have kept small videos, but if you want we can give you the longer version of the videos as well। Okay, now if I come to the dashboard, I'll take your questions at the end। we have good maybe half an hour, 45 minutes to take all your questions। अब यहाँ अगर डैशबोर्ड की बात करें तो जो प्राइमरली आपके ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो प्रोग्राम की प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड का लिंक दिया हुआ था, अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इट्स टेकिंग टाइम टू ओपन अप, बट या लेट्स वेट। ओके, सो दिस इज हाउ द पोर्टल लुक्स लाइक। अगर यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखेंगे पेज पोर्टल ओवरऑल रिपोजिटरी, उसके बाद नंबर ऑफ लेक्चर व्यूड आपको दिखेंगे। आई कैन जूम इट अ लिटिल। ठीक है, यहाँ टॉप लेफ्ट में आपको पेज पोर्टल रिपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स व्यूड का सेक्शन है, उसके बाद पेज अटेंडेंस है कि कितने टीचर्स का लॉगिन हुआ है, उसके बाद पेज का टेस्ट रिपोर्ट है, जो बच्चे इसमें टेस्ट लिंक ओपन करके या एनीवन हु इज गिविंग द टेस्ट उनका टेस्ट रिपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। और जैसे जैसे अब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो ये सेक्शंस जो हैं आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपका स्कूल या आपका डिस्ट्रिक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है वर्सेस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। सो वी वांट टू हैव ए हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें, जैसे हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 123 स्कूल्स हैं,
ओके सो कुछ टीचर सोच रहे होंगे SOE शायद 117 है, बट देन वी हैव सम मेरिटोरियस स्कूल आल्सो पार्ट ऑफ इट। नंबर ऑफ यूजर्स जो अभी हमारे okay. I'll request the teachers to mute yourself for a while. ठीक है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, 123 स्कूल्स हैं और 323 यूजर्स हैं। अगर ओवरऑल अगर हम रिपोर्ट की बात करें जनवरी के महीने में 3 हफ्ते में नंबर ऑफ स्कूल्स जिन्होंने पोर्टल एक्सेस किया है, वीक 1 में 35 था, वीक 2 में 21 हो गया है और वीक 3 में ये नंबर 16 हो गया है। अदरवाइज इट शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड कि 35 से दिस शुड हैव गॉन टू 50, 70, 90 एंड अबव। So, but I'm sure there must be reasons which you can of course discuss with the officials. कहीं पे एग्जाम चल रहे होंगे, कहीं पे कुछ छुट्टी हुई होगी कुछ दिन की. For those reasons, the portal might not have been used very actively. But this is how the weekly report looks like कि हमारे overall कितने schools ने portal को access किया. अगर आप वीकली रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा मिल रहा है। भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज संगरूर की बात करें तो वीक 1 में इन्होंने 1 बार लॉग इन करा है, वीक 2 में 3 टाइम्स किया है एंड वीक 1 में 8 टाइम्स किया है। Okay, so this is the district wise report. अगर ओवरऑल बात करें संगरूर में से 43 times login हुआ है. So this is how the report looks like. This is more for the officials than the teachers, but I'm sure the officials are also on the same call. But then the teachers have to be little careful, but because everything that they do on the portal is getting monitored and gets reflected in the form of a report. अब number of viewed lectures की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको दिख जाएगा कि कितने व्यूड लेक्चर्स हैं हमारे पर सब्जेक्ट। ओके, सो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर मोगा इज ऑन द टॉप विद 418 सेशन बीइंग वॉच्ड। उसके बाद संगरूर है, उसके बाद जालंधर है, बठिंडा है और फिर मलेरकोटला है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टीचर्स और स्कूल्स माइट बी मोर, व्हिच आई एम नॉट श्योर। आई मीन द ऑफिशियल्स आर बेस्ट प्लेस्ड टू आंसर दिस, बट मोगा में मैक्सिमम लॉग इन हुआ है, देन संगरूर एंड मलेरकोटला। दीज आर द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अगर बॉटम 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें मुक्तसर जो है वो काफी कम यूजेज हुआ है यहाँ। एंड विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम द मुक्तसर टीचर कि व्हाट एग्जैक्टली इज द चैलेंज दे आर फेसिंग। हो सकता है वहाँ इंटरनेट का इशू हो या पेज का ओरिएंटेशन उनका फर्स्ट प्रॉपर ना हुआ हो, दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेस इट, दे माइट बी जेन्युइन कंसर्न्स व्हिच वी कैन ऑफ कोर्स एड्रेस। उसके बाद गुरदासपुर में 19 सेशंस वॉच हुए हैं, फरीदकोट में 23 एंड फिरोजपुर में 40। So this is how the top 5 performing districts and bottom performing districts looks like. तो बट हम चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में एक ऑप्टिमम यूजेज आ जाए जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कंटेंट और द पेज पोर्टल होना चाहिए। अगर स्कूल वाइज बात करें तो सबसे टॉप में है कायला मोगा, SOE कायला मोगा। इज इट करेक्टली स्पेल्ड? Okay, so maybe I will be happy to hear a teacher from Kaila Moga, जहाँ सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। This is like 318, then comes मलेरकोटला, संदूर मलेरकोटला, जहाँ 218 टाइम्स जो है सेशन यूज हुआ है, ये लॉग इन हुआ है। तो कायला मोगा जो टीचर्स हैं, so if someone is there, then in the next slide when I address the question, I'll be happy to hear कायला मोगा टीचर्स। और अगर बॉटम परफॉर्मिंग स्कूल्स की बात करें तो मुक्तसर में SOE बरीवाला है जहां सिर्फ एक लॉगिन हुआ है। एंड देयर आर सो मेनी स्कूल्स जहां सिर्फ सिंगल लॉगिन हुआ है। बरीवाला है, उसके बाद जंदियाला है, शहीद परमजीत सिंह स्कूल है, पिपलन वाला है। So all these schools have very poor usage at this point of time, but like I said, there might be genuine reasons which we are happy to hear and address कि क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, आप क्यों लॉगिन नहीं कर पा रहे या क्यों कंटेंट एक्सेस नहीं कर पा रहे। But this is how the report looks like. I mean, this is how your officials are going to drive it. Like I said, this is a collaborative effort कि जहां हम सब मिलके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और रिजल्ट इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें जहां जहां भी इश्यूज या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू ओनली टू रिजॉल्व दोज इश्यूज, बट हम चाह रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। नो, इफ आई कम अबाउट द पेस अटेंडेंस, दिस हाउ द ब्रॉडकास्ट क्लास का अटेंडेंस लुक्स लाइक कि यहाँ अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल्टर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दिख जाएगा। ओके, तरन तारन का देखो तो ये सारे स्कूल्स हैं, ये टीचर आईडीज मेंशन हैं जहाँ पर इन्होंने ये क्लासेस जो हैं ब्रॉडकास्ट क्लासेस ली। ओके, सो वी नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ द टीचर्स, बट दीज आर द सिंपली द टीचर आईडीज। सो दिस इज मोर फॉर द ऑफिशियल्स देन द टीचर्स। Of course, the teachers can also go into the portal and find out how is it looking like for them.
अब यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये बच्चों की वीकली टेस्ट हुए, मान लो कुछ बच्चों ने टेस्ट दिए होंगे, उनका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है। अगर एक ही बच्चे की बात करें, ये मानसा से लवप्रीत एक बच्ची है जिसने यहाँ पर टेस्ट दिया है, उसका एकेडमिक लेवल जो है नॉट क्वालिफाइड आ रहा है। जो हम एकेडमिक लेवल डेजिग्नेट करते हैं बच्चों का, वो आई मीन आई एम श्योर व्हेन वी कंडक्ट द ऑफलाइन टीचर्स ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू इलैबोरेट मोर ऑन इट। बट अगर मेडिकल का बच्चा है तो हम उसको ग्रेड करते हैं कि बच्चा एमबीबीएस लेवल का है, बीडीएस लेवल का है, आयुष एग्जाम लेवल का है, फार्मेसी का जो एडमिशन होता है उसका एकेडमिक लेवल है, फिजियोथेरापी है, डिफरेंट एकेडमिक लेवल। सेम अगर बच्चा मैथ वाली सेक्शन का है, पीसीएम ब्रांच का है, स्ट्रीम का है, तो उसके लिए हम एकेडमिक लेवल ग्रेड करते हैं कि बच्चा आईआईटी लेवल का है, एनआईटी लेवल का है, स्टेट कॉलेजेस का है, एडिड कॉलेजेस, क्या लेवल का स्कोर है बच्चे का। और उसका एक हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है, उसको बेस्ड ऑन द स्कोर एंड बेस्ड ऑन द कैटेगरी आल्सो, लाइक आई वाज मेंशनिंग कि मान लो यहाँ पर एक स्टूडेंट है ए जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसका 80 पर भी उसका आईआईटी में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बच्चा ये क्वालिफाइड है। जैसे मान लो इस बच्चे का स्कोर देखें तो 41 है, ही इज शी इज क्वालिफाइड। बट दूसरा बच्चे का 41 स्कोर पे नॉट क्वालिफाइड होगा क्योंकि वो उसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है डिफरेंट है, ये वेरी करता है। और यही चीज है जो हमें शायद बच्चों को नॉट इन द इंटायर क्लास बट वन बाय वन बच्चों को समझाना है कि आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ यू विल हैव टू कीप इन माइंड एंड टारगेट अकॉर्डिंगली। और दूसरा जो ब्रॉड कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो हमेशा हम बच्चे को शेयर कर देते हैं कि भाई अपकमिंग टेस्ट में जो कट ऑफ होगा वो कैटेगरी वाइज ऐसा दिखेगा। और आई एम श्योर द स्टूडेंट वुड इवेंचुअली एम की उनका एटलीस्ट कैटेगरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसके ओवर एंड अबव दे शुड गो एंड मेरी जनरल का या ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो भी क्रॉस करना चाहिए, बट मिनिमम दे शुड डू इज क्रॉसिंग द कट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। यहाँ पर अगर मैं लवप्रीत की बात करूं तो इनका ओवरऑल स्कोर 11 है। जो अगर एकेडमिक लेवल की बात करें तो इनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ है। ओवरऑल एक्यूरेसी रेट 35 है, फिजिक्स में स्कोर जो है 11 है, और केमिस्ट्री का स्कोर नहीं है क्योंकि बच्चे ने शायद केमिस्ट्री स्किप कर दिया होगा, मैथ बायो का स्कोर भी नहीं है, तो बच्चे ने शायद एक ही सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट किया और टेस्ट सबमिट कर दिया। और यहाँ पर अगर इस बच्चे की बात करें जो बच्चा क्वालिफाइड दिख रहा है 41 है, इसका एक्यूरेसी 63% है। इसने भी फिजिक्स का स्कोर नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ मैथ में ही बच्चे ने 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ओके, सो हो सकता है ये सिर्फ बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट दिया हो, बट दिस इज हाउ द पोर्टल वुड लुक लाइक। यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट कि आप या बच्चे के नाम के फिल्टर लगाएंगे तो जिस भी बच्चे ने जितने भी टेस्ट दिए हैं वो सब एक जगह आ जाएंगे। तो लवप्रीत ने अगर 4 डिफरेंट टेस्ट दिए हैं तो यहाँ पर 4 डिफरेंट रोज रिफ्लेक्ट होंगी, बट आई एम श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे माइट हैव टेकन 1 or 2 टेस्ट। तो इसलिए जैसे मान लो युवराज का देखो 1 2 3 4 5 6 7 maybe 7-8 tests this student has taken, and this is how it looks like all his tests are not qualified. Okay, so this is how the student data would look like. अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस ओवरऑल हम देखें, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज भी कर सकते हैं। आई एम श्योर इफ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अदर डिस्ट्रिक्ट, आई एम जस्ट कंसर्न लेट्स से अबाउट तरन तारण का परफॉर्मेंस कैसा है। सो या दिस हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर क्वालिफाइड 12 बच्चे, नॉट क्वालिफाइड 11 हैं, टोटल बच्चे जो थे 23 थे जिन्होंने टेस्ट दिए, जिनमें से 12 बच्चों ने क्वालिफाई किया। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये घर, अच्छा दूसरा ये आप टॉप में मेडिकल देख रहे थे, नीचे इंजीनियरिंग का ब्रांच है। तो दिस समथिंग दैट यू गाइस कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन इट एंड सी कि हमारे स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं। एक चीज जैसे मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि बच्चे के अंदर एक टेम्पटेशन होता है चीटिंग का जब वो घर से करेगा। ये हमने दूसरी स्टेट्स में भी देखा है कि बच्चे को लग रहा है कि मैं तो घर से टेस्ट दे रहा हूँ, तो मोबाइल से देख लेता हूँ यहाँ वहां से आंसर। तो वो बच्चे को आपको समझाना है कि जो भी टेस्ट दें वो ऑनेस्टली दें, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे एज ए टीचर पता चलेगा कि मेरे ये पर्टिकुलर चैप्टर में या टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है परफॉर्म नहीं कर पाए, तो देन आई कैन गो एंड रिवाइज दोस चैप्टर्स, क्योंकि मैं किसी बच्चे को इस टेस्ट के बेसिस पे कोई ग्रेडिंग, हार्मिंग, कोई रिवॉर्ड तो नहीं करने वाला हूँ। सो बस बच्चे को मैं चाह रहा हूँ कि वो ऑनेस्टली टेस्ट ले, ताकि टीचर को पता चले कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में बच्चा अच्छा कर रहा है और कौन से टॉपिक में या चैप्टर में बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सो दैट आई कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। और बच्चे को कहना है कि भाई दिस इज योर टेस्ट, योर रिपोर्ट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आपका स्कोर अभी 10% है, 20% है, इवेंचुअली इट शुड गो टू 80%, 90%, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months, 6 months. Don't get discouraged if your score is low. तो बच्चों को ये कहना है कि जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो चीटिंग नहीं करना, ऑनेस्टली टेस्ट देना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड।
and if the teacher or the team wants to add more features, we can take suggestion and incorporate. These were the templates which were shared by your state level or district level official कि वो डैशबोर्ड में ये सब चीजें देखना चाहते हैं. And if you want to see more details, we can provide that as well. जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बच्चों से गूगल फॉर्म में डॉट्स कैसे कलेक्ट करने हैं, तो इसमें हम लोग आपको एक गूगल फॉर्म ड्राफ्ट करके दे देंगे. जो भी जिस भी वीक में टॉपिक या चैप्टर चल रहा होगा, बच्चे को सिंपली या बच्चे को या टीचर्स को भी हम एक दो ऑप्शन रख रहे हैं कि अगर टीचर्स को डाउट्स हैं, दे कैन फिल इट इन अ सेपरेट फॉर्म and there is going to be a separate form for the students. Okay, so the first thing that the participant has to do is open the Google form, fill in your basic detail, जिसे हम identify कर पाएं कि name क्या है, school name क्या है, subject क्या है. उसके बाद drop down होंगे वहाँ chapters के. आप मान लो motion in a straight line आप select कर रहे हो, उसमें आप topic select कर रहे हो. उसके बाद write your doubt. उसमें जैसे typically main challenge ये आता है कि अगर मैं मोबाइल से टाइप करने लगूंगा, मैं x raised to power 3 मुझे टाइप करना नहीं आता है मोबाइल में. I'm sure teachers will be able to figure out, but बच्चा कैसे टाइप करेगा, या टीचर्स को भी इशू है टाइप करने में. तो उस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन होगा फॉर्म में. जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, साथ में एक अटैचमेंट का आइकन होता है, उस पर क्लिक करके मैंने अपने सिंपल नोटबुक पे या पेज पे क्वेश्चन लिख लिया और वो अपलोड कर दिया. एंड दिस विल रीच द रिसोर्स पर्सन. और जो बच्चों के डाउट हैं वो हमारे टीचर्स के पास आएंगे, टीचर्स के जो डाउट्स हैं वो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, उनके पास आएंगे. देन वी कैन एड्रेस इट ऑन वीकली बेसिस. और इसका द वे वी आर प्लानिंग इट कि जो भी वीक में आप पढ़ाने वाले हैं एज ए टीचर, वो टॉपिक हमारे टीचर आपको मंडे या पर्टिकुलर डे इन वीक, लेट इट बी मंडे, कि मंडे को हमारे रिसोर्स पर्सन आपको एक रिकैप करा दें कि भाई ये चैप्टर्स हैं, ये अप्रोच होनी चाहिए इस वीक में पढ़ाने की. अब उसी के बेसिस पे सैटरडे हम बच्चों के डाउट्स ले लें, या फिर मे बी राइट आफ्टर द टेस्ट कि भाई बच्चे ने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है. अब आपके जो संडे का टेस्ट पेपर था, लेट्स सॉल्व द टेस्ट पेपर एंड सी कि बच्चे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, बच्चों के कहाँ डाउट आ रहे हैं. तो द अपॉर्चुनिटी इज बोथ फॉर द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट टू आस्क देयर डाउट्स. एंड वी आर प्लानिंग कि हम ये शायद क्लासेज जो हैं डाउट सॉल्विंग की लाइव क्लास कर दें या ब्रॉडकास्ट कर दें, विच एवर वे आई मीन द डिसीजन वुड बी टेकन एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डू. अगर मंडे को आप टीचर्स हमारे गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं और हमारा जो रिसोर्स पर्सन है वो सेशन लेके आपके डाउट्स जो है वो टेकअप कर रहा है, और मोस्ट ऑफ योर डाउट्स मे गेट रिजॉल्व, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ डाउट्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम की वजह से एड्रेस ना हो पाए. दैट कैन बी टेकन अप इवेंचुअली और इन द सक्सेसिव लेक्चर, और मे बी द टीचर कैन कनेक्ट लेटर ऑल्सो. और सेम फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. अगर स्टूडेंट प्रॉपर्ली वीडियो उसने देखा है, डीपीपीज या सेल्फ स्टडी किया है या होमवर्क किया है, बच्चे के डाउट्स रिड्यूस हो जाएंगे. बट फिर भी इफ स्टूडेंट स्टिल हैज डाउट्स, दे कैन कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीक. So okay, this is the way we are going to collect the doubts from the student. Simple through the Google form. बच्चे Google form में chapters, अगर मान लो एज ए टीचर मुझे पता चलता है कि भाई ये चैप्टर में मेरे 50 में से 40 स्टूडेंट ने डाउट दे दिया, तो रादर देन टेकिंग द डाउट्स मैं पूरा टॉपिक ही रिवाइज कर देता कि भाई बताओ, मैं रिकैप कर देते कि भाई हमने क्या पढ़ा था. नो टेल मी कि कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, लेट्स डू द रिवीजन ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर रादर देन टेकिंग द डाउट्स. और ऐसा हो सकता है कि रैंडमली 2-3 डाउट्स आ रहे हैं जहाँ बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में या क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प चाह रहे हैं. No, the teacher can dedicate time for that also. But as a teacher, you should not get demotivated because this is something new that you are going to pick up. All of you are academically brilliant, which, like I said, we have very high confidence. But yeah, because there's going to be a change in the approach, the way you have been teaching previously versus your JNEET coaching classes that you are going to run. So that you got to be a little careful, and maybe you can always connect back with the resource person. And like I said, we might learn new things from the teachers here, and we might have very good suggestion. I'll be glad कि next year जो हमारे पेज पोर्टल पे content upload हो, notes हो या फिर videos हो, वो हमारे पंजाब के teachers का ही हो. And we say that this is the best teacher, जिनके videos के views जो हैं वो 10,000 तक गए हैं. It may go up to 1 lakh or beyond that also. So that way we aim long term में we should get the best teachers, the most motivated teachers who wish to contribute content wise. So we'll be happy to do that also. ठीक है. So this is class information. अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास ऑनलाइन होगी. टाइमिंग ऑफ द क्लास जो आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, this can be in 2 to 4 o'clock. But like I already mentioned in the slide कि ये flexible है. आप अपने टाइम टेबल में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर अपना टाइम टेबल रीवर्क करके कोचिंग क्लासेस सुबह 10 से 11 चलाना चाहते हैं, 10 से 12 चलाना चाहते हैं. दिस इज इंटायरली अप टू यू.
बट या वी जस्ट वांट यू टू मेक श्योर कि आप कोचिंग क्लासेस में या जेई नीट की क्लासेस में डेडिकेटेड टाइम दे। तो अगर 2 से 4 करना चाहते हैं या वट एवर टाइम इज फ्लेक्सिबल फॉर यू, यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे है, 5 डेज ए वीक जो है आपकी क्लासेस होगी। सैटरडे हम टेस्ट कर सकते हैं। टिपिकली हम लोग जैसे दूसरी स्टेट में हम टेस्ट जो है संडेज को करते हैं, बच्चा घर से टेस्ट दे सकता है, बट यहाँ पर हम थोड़ा और सिस्टमेटिकली करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट है तो घर से बच्चे की टेंडेंसी है कि वो एक मोबाइल से टेस्ट दे रहा है, दूसरे मोबाइल से आंसर जो है ब्राउज करके फीड कर रहा है, तो हमें एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं मिलती। तो यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आपका जो टेस्ट है वो सैटरडे को इन स्कूल हो जाएगा, सो यू विल गेट मोर रियलिस्टिक नंबर्स और एक्यूरेट प्रोजेक्शन कि आपके बच्चे चल आ जा फिर आपे आई थल्ले मेरे तो नहीं बिठाया जाना काका। Am you asking me or someone else? Okay. ठीक है। डाउट सॉल्विंग की अगर बात करें तो टिपिकली जो गूगल फॉर्म हम फ्लोट करेंगे व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, कि आप जब भी आपके डाउट सॉल्विंग गूगल फॉर्म आए आप कोशिश करें कि विद इन 24 आवर, जैसे मंडे को आया तो आप ट्यूसडे उसको फिल कर दो, फ्राइडे को आया तो सैटरडे तक आप उसको वापस शेयर कर दो, ताकि रिसोर्स पर्सन के पास एक दिन का समय हो कि वो देख लें कि भाई कहाँ से कौन से टॉपिक से चैप्टर से ज्यादा डाउट आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली अपना लेक्चर जो है प्रिपेयर करें। वीकली क्लास शेड्यूल जो है हमने कोर्स प्लानर भी टेंटेटिव आपको शेयर किया है कि आप अगले हफ्ते क्या पढ़ा सकते हैं, कौन से चैप्टर। अब ये है कि इसमें थोड़ा कंसेंसस की बात है कि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल में अगर डिफरेंट प्लान फॉलो करेंगे तो फिर थोड़ा जो टेस्ट लेना है वीकली वो शायद सिंक ना हो पाए। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेंटेटिव कोर्स प्लानर व्हिच वी हैड शेयर्ड विद द ऑफिशियल्स कि आप लोग जो भी आपके मास्टर टीचर हैं, सीनियर टीचर्स हैं, यू गेट इट रिव्यूड फ्रॉम देम and you get back to us whether we can go ahead with this or not. जो हमारे पास सजेशन है, they said we can go ahead with that and I'm sure that has already been circulated in the WhatsApp group. तो आपका जो वीकली क्लास शेड्यूल है वो उसी हिसाब से चलना चाहिए। फॉर योर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर हम आपको मार्च में ही कोर्स प्लानर दे देंगे which should be followed for the entire academic year. अभी we are running classes little in haste because हमारे पास hardly, जैसे मैंने बताया कि almost a month या उससे भी कम का समय बचा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए हम कोर्स प्लानर पूरे साल का आपको शेयर कर देंगे एंड यू कैन ऑफ कोर्स प्रेजेंट द वीकली प्रोग्रेस एंड वी कैन सी कि भाई कहाँ कितना सिलेबस कवर हुआ है। उसमें हम कुछ बफर टाइम भी रखते हैं कि हो सकता है कहीं फेस्टिवल आ जाए, कहीं पे क्लासेस डिसरप्ट हो जाएं, एग्जाम्स आ जाएं, सो वी कैन इंक्लूड ऑल ऑफ दैट एंड while we make the planner we discuss with the officials also कि आप अपना कैलेंडर दे दें, कौन से महीने में समर ब्रेक होगी, विंटर ब्रेक होगी, कब फेस्टिवल आना है, कहाँ टीचर का दूसरा ड्यूटी, जैसे कभी इलेक्शन ड्यूटी लग सकता है। सो वी कंसिडर ऑल ऑफ इट व्हाइल मेकिंग द कोर्स प्लानर एंड दैट वी वांट प्रेफरेबली दैट यू फॉलो दैट। जो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर या वर्कशीट की बात करें तो ये ऑलरेडी आपको पोर्टल पे दिख जाएगा, जो मैंने अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया। नो इफ आई कम टू द क्वेश्चंस, हमने अभी एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया था जिसमें टीचर्स ने अपने अपने फीडबैक दी हैं। कुछ क्वेरीज हैं जो मैं यहाँ पर ले पाऊंगा, उसके बाद आई ओपन द माइक एंड ऑल ऑफ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। कुछ टीचर्स ने बोला था कि हमें स्टेट बोर्ड के हिसाब से सिलेबस वाइज मटेरियल मिले, तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि क्योंकि हम जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जैसे अगर जेई में बात करें तो रफली केमिस्ट्री के 10 चैप्टर तो डिलीट हो चुके, तो आई मीन नो द टीचर का कॉल है कि भाई वो 10 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं कि नहीं पढ़ाने। तो माई सजेशन इज कि शायद आप वो बोर्ड के लिए पढ़ाओ, बट हमारे जो जेई की क्लासेस हैं उसमें वो चैप्टर नहीं पढ़ाएं। तो हमारा फोकस प्राइमरली सबका यही होना चाहिए कि जो जेई में या नीट में सिलेबस दिया है हम उसी पे फोकस करें। जैसे नीट में भी कुछ सिलेबस का पोर्शन, नॉट टू मेनी चैप्टर्स बट स्टिल देयर सम चैप्टर व्हिच हैव बीन डिलीटेड। तो हम ये सिलेबस का जो लिंक है या सिलेबस जेई नीट का है दैट वी आर गोइंग टू शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इजी एक्सेस। तो उतना ही पढ़ाना है। इनफैक्ट जो हम आपका कोर्स प्लानर बनाएंगे उसमें हम सिर्फ जेई नीट के ही चैप्टर्स रखेंगे, तो इसलिए हम आपको शायद स्टेट बोर्ड के हिसाब से कंटेंट ना प्रोवाइड कर पाए, बट देयर आर लाइक लॉट मेनी रिसोर्सेज जहां पर आप स्टेट बोर्ड का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ जो एम है, पर्पस है, लक्ष्य है, वो यही है कि भाई जेई नीट में बच्चों को क्वालिफाई कराना, तो उसके लिए हमें उतना ही सिलेबस जो है कवर करना है, वो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100%। कुछ टीचर का सजेशन आया कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पेस प्रोग्राम टू कीप इन टच विद द स्टूडेंट्स। तो भाई जैसे टीचर ने, आई एम श्योर अज्यूम ये करता हूँ कि टीचर बोल रहे हैं कि मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ बट मेरे बच्चे कैसा कर रहे हैं, वो भी तो मैं देखना चाहता हूँ। तो ये जो हमने टेस्टिंग प्लानर शेयर किया है उसके आपको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्कूल वाइज रिपोर्ट भी दे देंगे। तो लेट्स से दैट आई टीच फिजिक्स, तो मुझे
सिर्फ फिजिक्स से मतलब है कि भाई मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो फिजिक्स में कैसा कर रहे हैं। तो हम आपको जो डिटेल्ड रिपोर्ट स्कूल वाइज जनरेट करके देंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज बच्चों का परफॉर्मेंस या स्कोर दिया होगा, एंड देन यू कैन सी इट कि भाई आपके स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस रिपोर्ट यू विल गेट ऑन वीकली बेसिस। मान लो आपका सैटरडे टेस्ट होता है, तो मंडे और ट्यूसडे यू आर गोइंग टू गेट द रिपोर्ट्स। एक चीज जैसे मैं ऑलरेडी पहले भी एड्रेस किया कि ज्यादातर टीचर ने, मैं ऑलमोस्ट 50% ने ये कहा कि उनको लॉगिन में बार बार दिक्कत है, कि जब भी लॉगिन करते हैं तो उनको दोबारा अपना आईडी डालना पड़ता है। That we are going to solve. I have written January ending में, but I have already raised it to the tech team. They said they need little more time to resolve this. But in the meantime, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे मोबाइल नंबर लॉगिन करना होता तो, क्योंकि मुझे याद है, तो मुझे शायद लॉगिन में ज्यादा दिक्कत ना आए। For now, you please do it the way you have been doing, but long term में during next academic year we'll try to resolve it. ठीक है। जैसे टाइम शुड बी शॉर्ट वीडियोस का, जैसे मैंने बताया था कि कुछ टीचर्स का ये सजेशन आया था कि टीचर जो वीडियो शॉर्ट हो। अभी जो हमने वीडियोस शेयर किए वो ऑप्टिमम लेंथ के हैं, ना ही वो शॉर्टर हैं ना ही वो लॉन्गर हैं। अगर आपको शॉर्टर वीडियो चाहिए देन प्रॉब्ली यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस एंड मेक योर ओन। और दूसरा ये भी है कि टीचर को पता कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, मुझे ये पूरा वॉच करने की जरूरत नहीं। यू कैन सिंपली वॉच द वीडियो एट 2x स्पीड, है ना। आप स्पीडन अप करके या स्किप करके भी वीडियो को सिलेक्टिवली वॉच कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे कोई वीडियो वॉच करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के कुछ टॉपिक्स का जस्ट आई हैव टू प्रैक्टिस इट, तो मुझे अगर आधे घंटे का वीडियो है तो टीचर उसमें 10 मिनट का पहले थ्योरी पढ़ा रहा है, तो मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, तो आई विल स्किप द 10 मिनट्स, आई विल कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस जो जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई विल जस्ट watch that much portion. So this is how you can deal with the length of the video. जैसे कुछ टीचर्स का सजेशन आया अकेडमी इंटरेक्टिव, बट कुछ टीचर्स का ये भी था, they were happy or satisfied also. Like I said कि हम चाहते हैं कि भाई no, the teachers can actually make more interactive videos and share it with us. We will be happy to upload those videos. For now, whatever content we have, this has already been uploaded. But yeah, your point is taken. We will try to make more interactive videos. कुछ टीचर्स का सजेशन आया था कि बच्चों के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे काफी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो IITs में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो ऑन मंथली बेसिस और एटलीस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस हम बच्चों के साथ आप ये IIT एलुमनाइज के साथ इंटरेक्शन जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। दे कैन टेक मे बी 1 hour सेशन स्कूल आवर्स में या फिर इवनिंग में, बच्चा विच एवर वे इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द टीचर सजेशन। तो जो भी मान लो कोई बच्चे हैं जो IIT बॉम्बे में अभी बीटेक कर रहे हैं, तो उन बच्चों से कनेक्ट कराएंगे। IIT दिल्ली में डिफरेंट IITs में हैं, तो उनके साथ मंथली और मे बी मंथली शायद ज्यादा हो जाए, बट एटलीस्ट क्वार्टरली तो वी कैन डू फॉर श्योर। बट अगर आप टीचर सजेस्ट करेंगे नहीं शुरू में हर महीने करना चाहिए ताकि बच्चों का मोटिवेशन बना रहे, वी कैन डू दैट ऑल्सो, कि हम हर महीने एटलीस्ट इन ए क्वार्टर, हर 3 महीने में एक बार बच्चों के साथ जो उनका ड्रीम कॉलेज है या जिस चीज के लिए वो एस्पायर करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं एस्पायर कर रहा हूँ कि मुझे IIT में जाना है, या मैं एस्पायर कर रहा हूँ कि मुझे एम्स में जाना है, तो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस या IIT से जो एलुमनाई हैं उनसे इंटरेक्शन करा के लेट द स्टूडेंट स्पीक विद देम। ओके, हाँ, कुछ टीचर्स का सजेशन आया था कि कंटेंट इंक्रीज होना चाहिए, तो इट्स गेटिंग अपडेटेड। हम लगातार वीक ऑन वीक कंटेंट जो है वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं, बट जब हमारा ऑफलाइन इंटरेक्शन होगा उसमें हम और डिटेल में जानेंगे भाई आपको किस लेवल का कंटेंट चाहिए। आप क्या एक ही टॉपिक के 3 वीडियोस चाह रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो वीडियोस हैं उसमें आप ज्यादा क्वेश्चन चाह रहे हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू रिक्वायर। बट देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने वीडियोस भी दिए हैं और कंटेंट जो नोट्स हैं, DPPs हैं, मटेरियल हैं, वो भी है आपके पास। तो अगर आप वो सारी चीजें रेफर करके आगे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच। More test links should be there. Like I mentioned, test links are updated. हम कोशिश ये करेंगे कि भाई हर चैप्टर के हर टॉपिक के बच्चे के पास सफिशिएंट टेस्ट हो। और कुछ बच्चों के मॉड्यूल भी मिलेंगे। मॉड्यूल में जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में मुझे अगर टेस्ट लेना है तो मैं टेस्ट में तो 5 ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो शायद टेस्ट तो लिमिटेड होंगे, बट जो मॉड्यूल में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा है। मे बी द स्टूडेंट और द टीचर्स कैन रेफर टू द मॉड्यूल्स। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टी है, कोई टीचर बोल रहा है कि वीडियो शॉर्ट होना चाहिए और कोई बोल रहा है कि लेंथी होना चाहिए। तो आई मीन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, but yeah, we are going to upload the repository also, but like I mentioned, we are happy to take these suggestion। और हो सकता है 2 months into the program, 3 months into the program, we might have very good teachers from Punjab who are making excellent videos, and we can upload those videos and they will be more helpful because they'll be in Punjabi, of course. So no, coming to the online training should be conducted in the evening, so this is something that
the government can decide, your officials are here, they can take a call, our resource person can take session any moment, a morning mein chahe, afternoon mein chahe, evening mein chahe. But yeah, this is up to the government to decide, or your state officials to decide कि training का time क्या होना चाहिए. Generally, I'm sure किसी भी state में डेकोर में यही रहता है कि working hours में ही training session रखे जाए. But we are fine, whichever way you want it, let the state government take a call on that. कुछ टीचर्स का सजेशन है, बहुत अच्छा सा सजेशन है कि वीडियोस में और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स होने चाहिए. दिस वी हैव नोटेड एंड वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट. मोर क्वेश्चन कैन बी एडेड, सो वी आर हैप्पी टू हियर दैट. वी विल ऐड मोर क्वेश्चंस. और जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब सिर्फ वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करो, यू आल्सो गो एंड एक्सप्लोर द नोट्स, मॉड्यूल्स, मटेरियल. सो आई एम श्योर इफ you refer to all of these things, most of your queries will be resolved. More pictorial representation, again this comes to be like representational hona chahiye, so this also we have noted. We'll take maybe we'll make sure that this gets addressed in the next lot of videos. फिर टीचर को कुछ सजेशन था कि ऑफलाइन मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए. So this, I guess the government is already working on it, and they are going to provide offline study material, this question banks, books, material for a different competitive exam in your school. Maybe the officials can update on that. So thank you so much. That's all from me. No, I can take questions from each one of you. The teachers can simply raise their hands, and one by one, you guys can ask the questions. Yes, Darshan sir. हेलो. Yes. Yeah, please ask your question. पंजाबी में पूछ सकते हो, पंजाबी पूरी समझ आती है. ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ. ਜਸਟ ਇੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਘਰ ਲਈ ਦੇ ਸਕੀਏ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ. Got it. नहीं, that's a good suggestion. और अगर हम पेज पोर्टल में अभी बात करें तो हमने एक नया सेक्शन अपलोड किया है, उसका लिंक हम सेपरेटली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, जहां पे बच्चे को मॉड्यूल का लिंक मिलेगा. तो जैसे मान लो मैंने मॉड्यूल के लिंक में उस बच्चे को हर टॉपिक में मे बी 20-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे. So after watching the video, the student can go to the modules and practice the question. मैक्सिमम जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए ना वो चाहिए हमें, एमसीक्यू चाहिए मैक्सिमम जितने हो सके. Yes. Makes sense. Competitive exam point of view से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही चाहिए. So we are going to upload that, and वो लिंक हम सेपरेटली ग्रुप में सर्कुलेट करेंगे, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे लिंक पे, यू विल स्ट्रेट अवे गो टू द मॉड्यूल्स जहाँ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एक सर जो अब जो मार्च का आप लोगों ने फरवरी तक डाला है जो भी अपना प्लानर, अब 13 से बोर्ड एग्जाम है, सभी टीचर एग्जाम ड्यूटी पे चले जाएंगे. या तो फिर जो स्कूल ऑफ एमिनेंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लेक्चरर है उनको एग्जाम ड्यूटी से एग्जेम्पशन दे दो. कुछ हमारी ऐसे जो इधर उधर की ड्यूटी लगती है ना उससे हमें दे दो. आज भी मेरी ट्रेनिंग थी मोहाली, इसके लिए मैं गया नहीं, आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ सर. एक टाइम पे 2 ट्रेनिंग आ जाती है, समझ में नहीं लगता क्या करें क्या ना करें. Okay. I guess, I mean, if the state resource person are here, they can address this particular query. We are fine. Which आपका अगर particular day में work नहीं है, but हमारा जो है ना मैक्सिमम टाइम स्कूल में होना चाहिए. हमें स्कूल से बाहर नहीं निकालना चाहिए. हमें बच्चों के साथ ही मैक्सिमम टाइम देना चाहिए कि कभी इधर ड्यूटी कभी कोई ड्यूटी. वो हमें साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हैं उनको थोड़ा एग्जेम्पशन दे दो, बाकी चलो चलता जो भी है. ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੀਪਕ ਸਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 6-26 ਲਿਖ ਦਿਓ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪਕ ਸਰ. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ. ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਉਸ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ.
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਏ। शायद मनप्रीत शर्मा जी मेरे ख्याल से काफी मैसेजेस मैम के आ रहे हैं। मनप्रीत मैम आपके जो भी ऑपरेशनल वाले इश्यूज हैं मैरिटोरियस स्कूल ते होने तुसी मेरे ख्याल तुसी प्लीज अपने मैरिटोरियस दे तुसी एडी सर नाल बलविंदर सर नाल शेयर कर लो ते उधरों देख लो कि की सॉल्यूशन निकलदा है। हुण नाले तुसी देखो मतलब नंबर भी इत्थे मंग रहे हो, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। शायद ओवर टू यू प्लीज। हाँ जी सर, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल ना हो तो फोन पर भी दे सकते हैं जो टेस्ट जो होगा बच्चों का। अभिराम सर आपका कौन सा स्कूल है? सर एसओई फगवाड़ा। फगवाड़ा। आपके आप प्रिंसिपल हैं कि सर लेक्चरर हैं? लेक्चरर हैं सर। हाँ, एक बार प्रिंसिपल सर से आप बात कर लीजिए। ये ऑपरेशनल डिटेल्स हमने कल प्रिंसिपल साहिबान ने सबके हमारे साथ शेयर करी थी, हमने उनको ऑप्शन सारे बता दिए थे। ओके सर, थैंक यू जी। ठीक है ठीक है। मैं फिर भी ना एक बार शायद सॉरी एक ये जो आप चीज बता रहे थे जो सर ने पूछी, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। कल प्रिंसिपल साहिबान ने साडू ये चैलेंजेस दसे सी, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਹਰ ਐਸਓਈ ਸਕੂਲ 'ਚ 2-2 ਲੈਬਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, 20 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੋ ਨੋਡਲ ਟੀਚਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਐਂਡ ਗੋਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਫੋਨਸ ਅਲਾਉ ਕਰ, ਫੋਨ ਮੰਗਾ ਲਈਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, वो सानू देखना पैना। ठीक है, शायद नाउ ओवर टू यू। सो जैसे एक सर थे दर्शन सर ने अभी रिक्वेस्ट प्लेस किया था कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए। जैसे अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, यहाँ पर यूनिट का नाम है, उसके बाद चैप्टर्स है, उसके सामने उसके क्लास नोट्स, रिकॉर्डिंग और डीपीपी है। और यहाँ अगर डीपीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर। और यहाँ क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि ये कौन से साल में क्वेश्चन आया था, कि मान लो यहाँ सितंबर 2020 के एग्जाम में आया था, ये यहाँ पर इस ईयर में आया था। तो एग्जाम पैटर्न से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बच्चे की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो ये सेक्शन भी आपकी वेबसाइट पे जैसे मैं बता रहा था अपलोड हो जाएगा। अब बच्चा जितना भी मटेरियल रेफर करना चाहे, डीपीपी को बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो बच्चा पढ़ने के बाद घर में जाके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। और चैप्टर वाइज वेटेज की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर वेटेज भी बनाया हुआ है कि लास्ट 3 या 4 साल का पैटर्न देखने पे कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। जैसे मान लो यहाँ पर ये चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज लगभग 47% है, कि यहाँ 2023 में यहाँ 72 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर 45 का आया था। तो टीचर यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज हैं, जिन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बच्चों के साथ ज्यादा टेस्ट लेने चाहिए इन चैप्टर्स के। सो ऑल ऑफ दिस विल बी शेयर्ड इन योर ग्रुप्स, और ये हम वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाले हैं, जहां आपको वेटेज का भी आइडिया मिल जाएगा
और अगर मटेरियल की बात करें तो DPP जो आप मांग रहे थे मॉड्यूल्स, वो भी आपको शेयर हो जाएंगे। ठीक है, एनी अदर टीचर हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, I guess people don't have questions. Yeah, I think, yeah, Shahid, there are no more questions. We can ask sir to just come in. Okay, there is one person raising hand. After that, we can ask sir to come in and we can decide on the day. Okay, Arpit Chabra ji, you can ask your question. ਜੀ ਸਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ? Okay, so Shahid, there are no more questions. We can just ask Deepak sir to come in now. Okay. Okay. ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਪਿਤ ਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 23 ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਨੀਤ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 23 ਜਾਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਪਾਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਕੁਆਇਰ, ਸਰਕਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 days की ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23rd, 4th and 5th को साइंस लेक्चरर्स की। मैम 25 से लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक एक और एग्जाम है। मैम जब भी स्कूल मैम ट्रेनिंग 10 to 3 है जी, आप खुद बताइए कैसे करेंगे फिर मैनेज? सभी लेक्चरर्स की है। एक मिनट, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੈਡਮ? सर बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग है जी साइंस लेक्चरर्स की। सर पूछो कल मैडम साइंस लेक्चरर की 25 तारीख ਨੂੰ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? सर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। 3 दिन चलनी है ट्रेनिंग हो? हाँ जी सर, अभी तक तो यही बताया है, मतलब जो लेटर आया है उसके अकॉर्डिंग। सर अगर साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग है, दीपक सर संजय बोल रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, बाकी टीचर ने तो स्कूल च रहना है और मॉडरेट ही करना है सिर्फ टेस्ट दा डिस्कशन जो होगा वो बाद च टीचर कर लेंगे। इस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए प्रिंसिपल साहिबान भी मेरे ख्याल ट्रेनिंग से जुड़े हुए ने, वो क्योंकि सिर्फ 2 ही टेस्ट होने हैं, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਆਣ, ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 2 टीचर चले जाएंगे, कोई गल नहीं, बाकी तो होर होंगे, पीटीआई टीचर्स होंगे, फिजिक्स मास्टर कैडर होंगे स्कूलों च। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ 25 ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਆਪਾਂ 25 ਤਾਰੀਖ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਜੇ, 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। 25 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 25 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇਈ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 10:30 ਤੋਂ 12:30, ਫਿਰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ 3।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ ਸਰ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੁੱਟੀ, ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ट्रेनिंग 'ਚ जाओ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ जो हैगे बच्चे आराम नाल टेस्ट दे दें। शायद एक दूसरी सी चीज थी जो मैं शायद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टेस्ट के रिगार्डिंग कहीं मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, मान लो मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से मेरा ये आ सकता है कि मान लो वो क्या टाइम बेस्ड टेस्ट होगा, मान लो आप लिंक भेजोगे 10 बजे बच्चों को खोलना ही पड़ेगा, 1 बजे तक 12:30 मान लो, मतलब 12:30 तक का टाइम है, तो 12:30 क्या वो लिंक अपने आप बंद हो जाएगा? हाउ विल दैट वर्क, ताकि टीचर्स जो हैं वो बच्चों, ताकि बच्चों ਨੂੰ वो उदा ਦਾ ओरिएंटेशन कर पाए एटलीस्ट कि बच्चों देखो प्रैक्टिस टेस्ट है, टेस्ट ऐसा रहेगा तो आपने टाइम का ध्यान रखना है। बाकी सारी टेक्निक्स तो बता ही देंगे टीचर्स, बट टेक्निकलिटीज आप टेस्ट की बता दीजिए प्लीज। मान लो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या मैं पीछे जाके उसको दोबारा करेक्ट कर सकता हूँ, कैसा रहेगा? तो सर एक ना फीडबैक, एक मिनट अपना शायद जी, एक फीडबैक फॉर्म अभी चैट बॉक्स में हमने शेयर किया है, तो मैं मतलब सभी को कहता हूँ भी वो भी आपने जरूर भरना है, ताकि जो हमारी आज की जो ट्रेनिंग थी इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या बढ़िया था, कैसे है, मतलब ठीक है, वो सबने भरना है फीडबैक फॉर्म भी, अभी चैट बॉक्स में शेयर किया। हाँ जी शायद जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक, हाँ तो सर जो आपका क्वेश्चन है कि टेस्ट कितने टाइम में ओपन होगा, क्या बच्चा आंसर उसमें चेंज कर सकता है, दो चीजें कि टेस्ट लिंक हम टिपिकली ओपन करते हैं जो आप टाइम हमें सजेस्ट करोगे। जैसे आप चाह रहे हैं कि टेस्ट 12 से 2 बजे हो, तो हम टेस्ट लिंक 12 बजे ही एग्जैक्ट ओपन होगा और 12 से 2 में क्लोज हो जाएगा। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि टेस्ट लिंक थ्रू आउट डे ओपन करते हैं। अब ऐसा भी हो सकते हैं संगरूर में टेस्ट 12 से 2 होगा, मुक्तेश्वर में ये सुबह 10 से 12 होगा, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 11 होगा। उस केस में हम टेस्ट लिंक थ्रू आउट डे ओपन करते हैं, बट जो ही बच्चे को लिंक मिलेगा तो वो लिंक ओपन है, बच्चा सुबह 9 बजे भी एक्सेस कर सकता है, 10 बजे भी, 12 बजे भी। तो बच्चों के साथ टेस्ट का लिंक सिर्फ 10 मिनट पहले आना चाहिए। टीचर को हम मॉर्निंग में या फिर एक दिन पहले भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लिंक ओपन है तो बच्चे ने जो ही लिंक पे ओपन किया तो उसका टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 घंटे का जो टाइम है वो द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लिंक इट स्टार्ट्स। तो मेरा अजम्पशन यही है कि आपके जो लिंक हैं वो अगर सुबह 8 बजे से ओपन हो जाएं और शाम को 5 बजे तक ओपन रहें, तो एज पर कन्वीनियंस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल्स आप अपने हिसाब से टेस्ट ले सकते हैं। बट ये इंश्योर करना है कि उस केस में टेस्ट का लिंक सिर्फ एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले ही ग्रुप में डाला जाए, अदरवाइज बच्चे पहले ही एक्सेस कर लेंगे। अगर पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है कि 12 से 2 का फिक्स है, फिर तो आप शायद सुबह शेयर करो, एक दिन पहले शेयर करो, तो फिर तो पर्टिकुलर टाइम में ही ओपन होगा। तो शायद फॉर हमने क्या करा है कि हमारा टेस्ट है 10:30 से 12:30 मॉर्निंग, जेई वाला है शायद, और नीट वाला 12:30 1 बजे से शायद, मतलब जो भी, मतलब हमने स्पेसिफिक टाइम रखा है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम लोग 10 मिनट पहले, मतलब उसको स्पेसिफिक टाइम पे ही रखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा होता है कि वो लिंक जो है वो 10 से 12 निकलेगा फॉर एग्जाम्पल। पूजा मैम म्यूट करना पड़ेगा आपको, थैंक यू। और वो हम टीचर्स को, हमारे जो टीचर्स ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो हम उसमें लिंक डाल देंगे 10 मिनट पहले, 10 के मतलब आधा घंटा पहले डाल देंगे ताकि टीचर्स लोग भेज सकें। बट सारे टीचर साहिबान ਨੂੰ मैं फिर एक चीज क्लैरिफाई कर रहा जो मैनू समझ आई है शायद दी गल तो, जे मान लो बच्चे ने वो लिंक पहला खोलता, वो फिर उसनू नहीं खोल पाऊगा। तो ये जिमें पेपर होंगे ना कि अच्छा बच्चे बैठ गए, जो लिंक आया करेक्ट 10 बजे तुसी या 5 मिनट पहला लिंक दे भेज दो बच्चों नू ताकि वो ओपन कर लैन।
ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿੰਕ 10 ਵਜੇ ਖੋਲ ਲਓ, 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਨੀਤ ਆਈ ਗੈਸ ਨਵਨੀਤ कैन शेयर कि फिर आपा दैट्स इट फॉर द ट्रेनिंग या कुछ और पॉइंट्स हैं जो वो शेयर करना चाहिए? We have almost covered our agenda. Yeah, Shahid. just one suggestion कि जैसे मैं अभी सारे टीचर्स को बता रहा था कि हमने एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक आप सबसे शेयर किया है, तो बच्चे की जो प्लेटफॉर्म ओरिएंटेशन है ना, कि आंसर कैसे स्किप होता है, कैसे सेव होता है, कैसे एंड होता है, टाइम कैसा दिखता है, तो प्रैक्टिस टेस्ट से बच्चा जो है एक बार ओरिएंटेशन ले सकता है, क्योंकि ये तो इवैल्यूएशन में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ बच्चे की प्रैक्टिस के लिए, प्लेटफॉर्म ओरिएंटेशन के लिए लिंक जो है वो भेजा गया है। और ये डिवाइस की कंपैटिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था, कई बार डिफॉल्ट ब्राउजर कोई दूसरा होता है, तो ऑन द डे ऑफ द टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें ट्रबल शूट नहीं करनी पड़ेंगी। और आई मीन अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट अभी स्कूल्स में बच्चों को शेयर कर दोगे, बच्चे घर से अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, सो वेयर एवर दे वांट टू। ये टेस्ट लिंक ओपन है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो लिंक आज भी ओपन है, कल भी ओपन है, इट विल बी ओपन टिल एंड ऑफ जनवरी। हमारा assumption ये है कि हो सकता है कुछ बच्चे पहला टेस्ट ना दें, सेकंड टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट लिंक अगले एक महीना नहीं, 31 जनवरी तक ओपन है, बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। और एक्चुअल टेस्ट का लिंक जैसे संजय जी भी बता रहे थे कि भाई आपका 10 मिनट पहले ही लिंक शेयर होना चाहिए। और अगर आप पूरी स्टेट में टाइम फिक्स कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप लिंक एक दिन पहले भी शेयर कर सकते हो और लिख सकते हो कि कल 12 बजे ओपन होगा। पर अगर स्कूल टू स्कूल टाइम वेरी कर रहा है, फिर सिर्फ 10 मिनट पहले ही ओपन करें। या दैट्स इट फ्रॉम मी। नवनीत, यू कैन गो। Yeah, Shahid. So we are done with the agenda. Deepak sir, कुछ और है तो please sir, then we can call. ठीक है जी, तो हमारी टेस्ट की जो डेट है वो डिसाइड हो चुकी है। अभी 25 को हमारा टेस्ट होगा और उसके रिगार्डिंग काफ़ी जो क्लैरिफिकेशन है मतलब शाहिद की तरफ से भी हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है भी हमारा जो ये फर्स्ट टेस्ट है बहुत ही बढ़िया रहेगा। और उसके रिगार्डिंग जो हमारे जो टेस्ट हैं उनकी मतलब प्रेपरेशन के लिए वो भी भेजे हैं। तो मैं मतलब आप सभी से यही मतलब मुझे उम्मीद है भी हमारा जो ये स्टार्टिंग प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ, ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मीटिंग एंड कर देते अभी, थैंक यू सो मच। Yes, Shahid.